ਪਿਆਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਯਸ਼ਿਕਾ ਐਂਡ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 2014 ਤੋਂ 15 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ। ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ PR ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ PR ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਹਜੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਟੂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਗਾਈਜ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਇਟ। हाय यशिका एंड हाय अभिषेक, कैसे हो आप लोग? हाय कमल, मैं अच्छा, आप बताएं कैसे? मैं बहुत अच्छी। हाउ वाज योर डे गाइस? It's very nice. It was very nice. It's so hot in India right now. So which language would you guys prefer? Mix up, right Abhishek? Yes, जी. Hindi, English, Punjabi जो आता है आम दो, ठीक है? It's all good. So I'm gonna start with you Abhishek, and to my audience I just want to tell that these people got their visa right now and congratulations first of all both of you guys. So just want to share, I just want to listen to your experience, how you guys are feeling. And so I'll start with Abhishek first. So Abhishek, tell me, why did you pick Canada? Like आपने Canada क्यों pick किया? I mean बहुत सारी और countries हैं, Australia is there, New Zealand is there. So why did you pick Canada? क्या उसका reason था, क्या desire था, क्या dream था? Because first of all, my reason is that it modern opportunities मिलती है मतलब लोगों को वहाँ पे काफी कनाडा में हैं। टॉप नॉच यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं वहाँ पे पढ़ने लायक। और फर्स्ट एंड सेकंड एंड इट आल्सो प्रोवाइड अस प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल। सो आपके और भी कोई फ्रेंड्स कनाडा में थे, मतलब जहाँ से आपने सुना हो कि यार मेरे फ्रेंड्स भी हैं इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, या मतलब किसी को देखा हो या कुछ ऐसे कि ऐसी मतलब सोचा कि कनाडा जाना है? नहीं, मेरे काफी मतलब फ्रेंड्स हैं वहाँ कनाडा में, तभी मैंने सोचा। सही है। तो फिर ट्राई भी ली। सो बेसिकली आप एक बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आपने कनाडा पिक किया एज फॉर योर स्टडीज टू, है ना? सही है। सो आई एम गोना गो एंड आस्क नाउ यशिका, सो व्हाई डिड यू पिक कनाडा? व्हाट वाज योर ड्रीम, व्हाट वाज योर डिजायर, व्हाट मेड यू एक्चुअली गो टू कनाडा? लाइक व्हाई डिड यू पिक कनाडा? पर सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि जो कनाडा है इमिग्रेशन का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है राइट नाउ। एजुकेशन सिस्टम इज परफेक्ट, प्रैक्टिकल आल्सो राइट। तो कनाडा मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स भी वहाँ पे, तो जब उनकी वीडियोस देखते हैं ऑब्वियसली हमारा ही मन करता है कि यार हम भी वहाँ पे जाएं। दूसरा ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है बिकॉज वहाँ पे इमिग्रेंट्स की जरूरत है। और ड्रीम तो है शुरू से देखा ही है। So that was the reason of you going there. To be honest, I'm going to share with you guys my own experience. Why did I pick Canada the time I really wanted to go? मुझे शुरू से नहीं था कि कभी कनाडा जाना है। कहते हैं ना जहाँ पर आपका दाना पानी है, things makes sense to you know. जब मैंने +2 करी थी तो everybody was applying because you guys know नॉन मेडिक जब हम करते हैं राइट, तो नॉन मेडिक के बाद कोई एग्जाम दे रहा होता है, कोई एंट्रेंस कुछ ना कुछ। सो आई वाज द ओनली आई थिंक इन माई क्लास मैं कुछ नहीं कर रही थी एंड एवरीबडी वाज लाइक तू करना क्या चाहती है, एंड आई डिडंट टोल एनीबडी। मेरे को ये था कि आई वांट टू गो इन स्पोर्ट्स, बट किस्मत थी कनाडा के लिए। सो आई वाज लाइक मॉम सेड आइल्स करके देख ले, करते करते आइल्स वीजा तक आ गया एंड आई एम इन कनाडा। द बेस्ट पार्ट व्हाई आई पिक कनाडा वाज आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो डे 1 से, खुद के लिए खुद काम कर सकते हो, खुद कमा सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट। यहाँ होते यहाँ पर आप कॉलेज फीसेस घर वाले भरते राइट, दैट वाज द थिंग। मुझे था कि मुझे खुद करना है। That was the only reason I picked Canada. बाकी बहुत सही है, बाकी आप लोगों को पता लगेगा कि it's really a good choice you guys made. अभिषेक आप कुछ कहने वाले थे, सॉरी। अच्छा सही है। सो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने इंडिया में क्या पढ़ाई करी थी, है ना, एंड आपने वहाँ क्या पिक किया है और आपकी फाइलिंग प्रोसेस वगैरह कहाँ से की है, कैसे करी है? I'll start with अभिषेक। आप बताओ आपने यहाँ पर क्या किया? Did you do 12th ग्रेजुएशन किया, क्या किया आपने यहाँ पर?
I recently completed my senior secondary education from Army Public School Ambala Camp in commerce stream. ओह नाइस, बिंगो, मैंने भी आर्मी पब्लिक स्कूल से की थी। ये बड़ा फेयर डिसीजन होता है, क्योंकि अगर आपको पता ही है आपने कनाडा जाना है, देन अकॉर्डिंग टू मी डोंट वेट फॉर यहाँ कॉलेजेस करने। अगर जाने कनाडा 12th के बाद चले जाओ, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी जा सकते हैं, जैसे यशिका ने की हुई है, वो अपना शेयर जरूर करेगी। तो अच्छा, आपने 12th करी थी, तो उसके बाद आपने कनाडा में मतलब कौन सा कॉलेज पिक किया और मतलब कौन सा कोर्स लिया, इफ यू वांट टू शेयर? I choose Naira College because of अच्छा, its infrastructure and there are 3 campuses like in Welland, Niagara on the Lake and Toronto campus. ओके, सही है। And my एंड course is आई बेग यू पार्डन, कोर्स कौन सा आपका? international business. नेशनल बिजनेस, सही है, सही है। इज इट 2 International. years or is it 1 year इंटरनेशनल बिजनेस? It is 2-year course. It's a 2-year program. Okay, wonderful. And what about you, Yashika? Like, what did you do in India? And like, आपने क्या किया यहाँ पर और वहाँ पर आपने कौन सा कोर्स पिक किया है? I hold a bachelor's degree in journalism and mass communication. और मैंने वहाँ पर कनाडा के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस लिया, द सेम कोर्स। ये 1 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा। So like आपने यहाँ पर बैचलर्स कर ली, तो like did you plan after? मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा काश मैं भी 12th के बाद चली जाती, बैचलर्स कर लिए अब? ये तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुझे भी फील हुआ कि शायद पहले कभी सोच सकता, बट मेरा पहले बिल्कुल प्लान नहीं था कनाडा का। तो मुझे लास्ट ईयर के अंदर ही बोला कनाडा का। चलो, देर आए दुरुस्त आए, इट्स ऑल गुड। इवन फॉर मी, मुझे भी नहीं पता था 12th तक करना क्या है। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, मैंने नॉन मेडिकल करी थी, राइट? एंड मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स पिक किया। सो मैंने कंप्यूटर्स कुछ नहीं किया था इंडिया में, मैंने एक कंप्लीटली नई चीज पिक की थी शेरडन कॉलेज में। मैंने शेरडन से करी थी पढ़ाई अपनी, तो वहां पर सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट किया। जब वो किया और काम मैंने वर्क सेक्टर मैंने कंप्लीटली बदल दिया, राइट? सो थिंग्स हैपन, इट्स कंप्लीटली फाइन। कनाडा इस चीज में बहुत अच्छा है। मैं अच्छा आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे यहाँ पर कंपटीशन बहुत है ना, कि लड़कियों में बड़ा कंपटीशन होता है, इवन गाइज में भी होता है कि 0.5 पे यार मतलब 99 क्यों नहीं आए, यू नो व्हाट आई मीन? ऐसा नहीं है वहां पर बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट है, आप पे इतना स्ट्रेस नहीं रहता। बस स्ट्रेस वहाँ ये है कि आप यहाँ पर इंडिया में सिर्फ पढ़ाई करते हो, वहाँ आपको काम भी करना है। सो दैट इज वन, एक नया चेंज आ जाता है, उसका थोड़ा स्ट्रेस है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी कनाडा की पढ़ाई इतनी ज्यादा लीनियंट है ना, एज कंपेरेटिवली इंडिया की पढ़ाई की रीस कहीं नहीं है। We go to Canada for the better opportunities, I guess. So that's how it is. And अभिषेक, अब आप बताओ कि आपने फाइलिंग वगैरह कहाँ से लगाई, आपने IELTS कहाँ से करी है, एंड कितना आपका स्कोर आया? एंड ये आप पे है, जो क्वेश्चन आप स्किप करना चाहते हो, आंसर इट्स completely up to you. I scored 6.5 overall. Wait, wow, 6.5 really? जो लोग हाँ, sorry. Not less than 6.5 in each module. 6.5 in each module, did you say? Yes. Not Wow. Huh? Not less than 6.5. I got it overall. So hurray, like जो लोग कह रहे थे recently कि लड़कों से आलस नहीं होती है एंड लड़कियां पे पैसे लगाते हैं, blah blah blah, that's actually a false statement. लड़के भी करते हैं यार, and I'm proud to hear this that you got such a good band. So आपने आलस कहाँ से करी थी? I started my IELTS course from Expert Immigration Ambala Camp. Expert से करी, that's really good. So did you file, like did you do your filing also from Expert Immigration? Yes, I start filing my process by Expert Immigration. Okay, perfect. That's good. What about you, Yashika? IELTS का मोस्टली पार्ट मैंने खुद ही अपने आप ही प्रैक्टिस करी, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका। So you didn't took any classes? कोई classes नहीं लिया आपने? I took classes for just 15 days, but Same here, even I took it for 15 days. Yeah, and I got overall 7 bands. Wow! Wow! बड़े इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हो इस रूम पे, क्या बात है। अच्छा, फिर हाँ जी, और जो मेरा फाइलिंग का प्रोसेस था उसमें मैंने IDP की हेल्प की, because they don't charge any fees. I want to add here, जैसे यशिका ने बताया IDP, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि
ऑब्वियसली यार जब हम कनाडा जाते हैं हमारे घर वाले बहुत बड़ा लोन उठाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ अस, नॉट एवरीबडी, तो हमारे लिए सिंगल पेनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो है ना, आईडीपी से आप अप्लाई कर सकते हो, इट्स फ्री, वो आपको चार्ज नहीं करते, दे आर प्रोफेशनल्स। जैसे यशिका का वीजा आया तो डेफिनेटली वीजा रेट तो वही रहेगा, अगर आप किसी को 20,000 दे के फाइल लगवाओगे या आईडीपी को 0 दोगे तो इट्स स्टिल रेलेवेंट। एंड आई थिंक आई ऑल्सो पर्सनली विल प्रेफर आईडीपी, क्योंकि आई मीन आई कैन आस्क अभिषेक, अगर आप शेयर करना चाहते हो, अप टू यू, आपने फाइलिंग कॉस्ट कितनी ली, अप्रॉक्स बता दो, नॉट एग्जैक्ट, इफ यू वांट टू शेयर। अभी तक तो मैंने एक भी मतलब पेनी नहीं दी उन्हीं को। मतलब उनके प्रोसेस फाइलिंग जब आप उनसे करते हो एक्सपर्ट वालों से, उनका क्या कॉस्ट है, मतलब अप्रॉक्स, जस्ट डोंट गो डायरेक्ट नंबर, लाइक 5 to 15,000। 5 to 15,000। चलो एनीवे, सो लेट्स सम अप विद दिस नंबर की, मतलब 10,000 भी लेट्स से अगर कोई फाइलिंग के लिए लेता है, लेट्स से अप्रॉक्स ले रही हूँ, बट आई नो इन्फ्लेशन इज गोइंग अप एंड अप एवरी डे, तो बट स्टिल यू सेव 10,000 टू, इट्स अ बिग अमाउंट फॉर अस, इजंट इट? सो आईडीपी वोंट चार्ज, बाकी इट्स ऑल योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, आप जहां से भी करना चाहते हो करो, बट इफ यू गाइस वांट टू सेव सम, डेफिनेटली गो फॉर आईडीपी एज पर माय प्रेफरेंस। कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस फॉर योर ओन बेटर, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे ये बातें नहीं पता थी, क्योंकि मैंने भी आइल्स चंडीगढ़ से करी थी 15 दिन, मैंने फाइलिंग यहाँ पर कैंट से करी थी, एंड दे आल्सो चार्ज, इट वाज रीजनेबल, बट ठीक है यार, घर वालों के अगर 20,000 भी बचते हैं तो आई थिंक सेव क्यों नहीं करने चाहिए। और लड़कियां तो मुझे लगता है ज्यादा वैसे पैसे बचा उठाई सोते कि घर वालों के थोड़े 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 बच जाए, सो आई थिंक दैट इज देयर। सो ओके, सो अब आप मुझे ऐसे बताओ कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लाइक यू गाइस आर एक्साइटेड, आप कनाडा जा रहे हो, मतलब एक इमेजिनेशन होती है, मुझे पूछो ना तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसा लगता होगा कनाडा, बिकॉज मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया था, इवन इंटरनेशनल छोड़ो, मैंने कभी ट्रैवल ही नहीं किया था बिफोर आई वेंट टू यू नो कनाडा, मैंने कभी एयरप्लेन में नहीं बैठी थी, तो मेरे लिए ऑब्वियसली लाइक मैं हेवन में जा रही हूँ, हेवन कैसा लगेगा, लोग कैसे होंगे, यू नो व्हाट आई मीन गाइस। तो आप लोग बताओ, आप लोग कैसा सोच रहे हो, आपने इंटरनेशनल पहले ट्रैवल किया है नहीं किया, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? लेट्स गो विद अभिषेक। It's my first experience to travel international, So we are in the same boat, okay. And I'm very excited to go Canada. Wow, so did you book your flight already or you haven't yet? I have to book my flight in September. In September. Why don't you guys book together? वैसे भी मेरे को भी जाना है कनाडा, so we can book together all our flights. But you are going to Niagara, so your immigration might be in Montreal or Toronto. सही है. Toronto, okay. So how about you, Yashika? Like, what's your thought process? Like, how are you feeling? Like, what is your imagination? Like, you know, for Canada? I was really excited. Seriously, I was really. It's a, you know, जब वीजा का पता लगता है कि वीजा आने वाला है, किसका पंगा पड़ा, फ्लाइट्स का? हाँ जी, उसके बाद मतलब एक्साइटमेंट कम, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो। Exactly. क्योंकि जब एकदम से ये आपके सामने सब कुछ हो रहा हो, सपने टूट रहे हो, थोड़े धीरे करके आप लेट हो रहे हो, फिर थोड़ा फील होता है कि यार I know, but you guys are still lucky, you know, but you know, even if the flights are getting delayed, you guys have the opportunity to, you know, start your classes on the Zoom. And मैं आपको बताती हूँ, कल ही मैं एक लड़की से बात कर रही थी, वो रिसेंटली गई है अपने यहाँ पर अल्बर्टा, एंड शी सेड उसके एजेंट ने ना फ्लाइट बुक करी होंगी, तो वो उसको टिकट नहीं दे रहा था, तो हमें होता है कि यार जब तक हाथ में टिकट नहीं होगी ना, तो हाउ वुड वी गो, है ना। तो घर वालों से भी सबसे मिल लिया, टिकट अभी तक नहीं है, उनकी कल फ्लाइट है, बट दे डोंट हैव टिकट्स इन देयर हैंड, तो वो एजेंट बोल रहे कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैं पक्का दे दूंगा, आप शाम को आ जाना। शाम को भी गए तो डॉलर एक्सचेंज मिले, बट टिकट नहीं मिली, एंड गर्ल वाज लाइक उसको सारी रात नींद नहीं आ रही है, पता ही नहीं, और अगले दिन मॉर्निंग भी उनके पास टिकट नहीं थी, उनकी फ्लाइट थी। सो कैन यू बिलीव उसके लिए कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा होगा, वो समझ ही नहीं पा रही घर वालों को बाय बोलना है कि नहीं बोलना है, तो बड़े खड़े पैर उसको टिकट मिली थी। आई नो दिस कोरोना सिचुएशन इज एक्चुअली यू नो मेकिंग थिंग्स वर्स, सो वी विल होप कि आप लोग सही टाइम से पहुंच जाओ, इट्स ऑल गुड है। आई नो प्राइसेस आर वेरी हाई ऑन टिकट्स, बट इट्स वर्थ इट। जब आप कनाडा में जाओगे, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर योर फैमिली, सब कुछ बराबर हो जाएगा, सो उसके लिए आप टेंशन ना लो। मैं ये बोलना चाहती हूँ, इवन अगर आप लोन भी लेके जाते हो ना कनाडा, अगर आपका बच्चा, मुझे ऐसा लगता है अगर वो रिलायबल किड है ना, इट्स वर्थ स्पेंडिंग इवन लोन। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा काम करेगा, पढ़ाई करेगा, हौली जब वो वर्क परमिट पे आएगा, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है ना, अपने घर का अच्छे से मैनेज कर सकता है। सो मेरे लिए कनाडा इज अ बेस्ट प्रेफरेंस। वाई? क्योंकि वो आपको बहुत सारे मौके देता है इस चीज को करने के लिए। सो एनी क्वेश्चन सो फार? आई मीन, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो कनाडा से रिलेटेड या कुछ भी, मतलब एनीथिंग यू गाइस यू नो दिमाग में चल रहा है,
You guys can ask. Di, I have a Questions question. बहुत है. You have a question, but why your camera is off? Because I'm written my questions in my notepad. Okay, so how sweet. Okay, so what is your question? The first week things we have to do in after reaching Canada. What are the things we have to do in first week? Very good question, Abhishek. So first of all, I'm gonna tell you before even you go to Canada, अगर आप पहली बार international travel कर रहे हो ना, I'm gonna suggest you few things. क्योंकि जब हम दिल्ली airport पे जाते हैं ना, we just become very underconfident, you can say. So first thing I would tell you, just be confident. अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जा रहे हो, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ होगा, आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, राइट, तो आप बड़े कंफ्यूज भी होगे. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड टू बी कॉन्फिडेंट. ठीक है. दूसरी बात ये है कि अगर आप सितंबर बैच में जा रहे हो तो बहुत आपके जैसे स्टूडेंट भी होंगे, तो यू विल मेक फ्रेंड्स विद देम. ठीक है. मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो दे देती हूँ. होने क्या वाला है, जब आप जाओगे आपका लगेज वगैरह वेट, मेक श्योर आपका वेट प्रॉपर है. ठीक है. क्योंकि नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. मेरे साथ ऐसा हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ था. यहाँ से वेट करके चले थे, वहां जाके पूरी टैक्सी खोल के बैठ गई थी मैं एयरपोर्ट पे. एंड आई वाज लकी, वहां पर एक लड़का था. लड़के वैसे इस केस में मैंने देखा सही होते हैं, उनके पास सामान ठीक ठीक होता है. उसका 16 kg था, तो उसके पास बहुत सारा स्पेस था, तो मैंने सारा स्पेस उसके उसमें डाल दिया था. तो बट दैट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन. आई डोंट वांट यू गाइस टू गो थ्रू. सो अच्छे से वेट करना. फिर आपको आपके बोर्डिंग पासेस वगैरह मिल जाएंगे. सिक्योरिटी चेक कर लेना. जब आप टिकट पे देख लेना कौन सी चीज अलाउ है आपके कैरी बैग में, कौन सी चीज आपके कैरी बैग में अलाउड है. ठीक है. वो आपको एयरलाइन के उसमें मिल जाएगा, सो दैट आपको वहां पर भी प्रॉब्लम ना आए. ये मैंने आपको थोड़ा सा सिनेरियो दे दिया फ्लाइट के टाइम. ठीक है. उसके बाद जहां पर भी आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, अगर चलो कोरोना की वजह से अगर हुए, अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन ना हुए, आपका वहां पर भी कोरोना टेस्ट होगा, वहां पर भी डिले मत करना. और जहां पर भी प्रॉब्लम आए, हर डेस्क पे वहां पर कस्टमर सर्विस रेप होते हैं, उनके पास चले जाओ, आस्क देम, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. क्योंकि कई बार डिफरेंस बहुत कम होता है नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट का. यू माइट मिस योर फ्लाइट. सो आई डोंट वांट यू गाइस टू गो थ्रू दैट. ठीक है. अब मैं आपको सेकेंड पार्ट आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर. सो अभिषेक, आपके हम क्वेश्चन पे थे कि कौन सी चीजों का ख्याल रखना है हम जब कनाडा जाते हैं. ठीक है. अब आपको ऑन बोर्डिंग वगैरह तो पता लग गया, उसमें आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है जब एयरपोर्ट दिल्ली पे जाना है या जब कोरोना टेस्ट होगा उसमें कोई क्वेश्चन हो. बस एक सीक्रेट है, बी कॉन्फिडेंट. और नहीं समझ आता, जस्ट आस्क एट द एयरपोर्ट. सिंपल इज दैट. स्टार्टिंग में थोड़े हम पजल्ड होते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट. अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी हेल्प ढूंढ ही लोगे, और आपकी जैसे और भी बहुत स्टूडेंट आपको फ्लाइट में मिल जाएंगे. सो इट्स नॉट गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइस. बाकी ये आपको अभिषेक कोई लेने आ रहा है एयरपोर्ट पे या नहीं आ रहा है? चलो फिर तो ये बहुत ही अच्छा हो गया. आई थिंक यशिका के लिए भी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, है ना. तो अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई लेने ही नहीं आता, अब मेरे को कोई नहीं लेने आया था एयरपोर्ट पे, एंड आई वाज वेरी लकी कि जो लोग फ्रेंड्स बन गए ना फ्लाइट में, तो उनमें से एक दीदी के नोन ने मुझे ड्रॉप कर दिया था. एंड यू नो मेरे साथ क्या हुआ था, असल में जिनके पास मैं जाना था उन्होंने एक दिन फ्लाइट से पहले कहा कि हम आपको लेने नहीं आ सकते. तो अब जो बच्चा नया जा रहा है उसके लिए तो इट्स लाइक अ बिग डील, है ना. तो आई वाज लाइक अब मैं क्या करूंगी. तो मैंने उनसे सिर्फ एड्रेस ले लिया था, और मुझे ये नहीं पता था मैं एयरपोर्ट पे क्या करने वाली हूँ. आई स्वेयर मुझे आई वाज वेरी नर्वस. पर कहते हैं ना, अगर आपकी नीयत साफ है, गॉड इज देयर टू हेल्प यू. अच्छा, वहां पर एक दीदी मेरी फ्रेंड बने थे, मुझसे बड़े भी थे काफी. तो वो हम दोनों बैठे रह गए, सारे चले गए, सबके लाइक लेने आ गए नोन्स, है ना. मैं बैठी हूँ, दीदी बैठी हुई है, और दीदी को रिलेटिव लेने आने वाले थे. तो नोबडी केम. नाउ दीदी वाज लाइक, सुना हुआ है कि लोग वादे करके लेने नहीं आते, तो दीदी बड़ी टेंशन में आ गई इस बात को सुन के. तो उनको लग रहा था मुझे कोई लेने नहीं आएगा, और मैं दीदी को हौसला दे रही हूँ, दीदी डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ. जबकि मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे कौन लेने आ रहा है, राइट. पर मैं दीदी के साथ बैठी रही, है ना. मैंने कहा जब तक आपको कुछ नहीं होगा, आई एम स्टिल देयर वेटिंग फॉर यू, क्योंकि मुझे तो वैसे कोई लेने नहीं आने वाला था. बट काफी वेटिंग के टाइम ना, कोई रश की वजह से उनके रिलेटिव्स आ गए, दे वर वेरी नाइस. तो मैं दीदी के साथ वेट कर रही थी, तो दीदी ने इसी कर्टसी से उनको कहा कि इसको भी ड्रॉप करना है. तो दैट्स हाउ आई गॉट माई राइड. कईयों के पास राइड नहीं होती है, दैट्स नॉट टू वरी अबाउट. उबर सस्ता है, बट उबर के लिए नंबर चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एज अ न्यू कमर वो हमारे पास है नहीं है. तो वहां पर टैक्सीज मिल जाती हैं एयरपोर्ट पे, अगर लेट्स से किसी के पास राइड वगैरह नहीं है, या मेरे जैसे किसी फ्रेंड को इस राइड दे देता है, बहुत लोग अच्छे भी हैं. सो दैट इज समथिंग यू गाइज हैव टू तो बात आप पूछ रहे थे, तो कौन सी चीजें. सो मैं वो बताने से पहले आपको और बातें बताती हूँ. जब आपका इमिग्रेशन होता है ना, ये बहुत बड़ा हवा बना देते हैं इंडिया में कि इमिग्रेशन में ये पूछेंगे वो पूछेंगे, बहुत तंग करेंगे. ऐसा नहीं होता.
बस ये बात है, अलग है कि जो ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर उसकी बीवी के साथ लड़ाई हो रखी है तो वो गुस्सा आप पे शायद उतार सकता है। अदरवाइज दे आर वेरी नाइस, आपको टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार तो वो ज्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। सो मेन क्वेश्चन जनरली उन्होंने यही पूछने हैं आप लोगों को कि आप कनाडा में क्यों आए हो, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा आपका कॉलेज है, कितनी ड्यूरेशन का, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, वही वो आप पूछने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने जो भी नोट्स है, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने कैरी बैग में रखना, क्योंकि वो आपको दिखाने पड़ेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी और जब आप इमिग्रेशन में जाओगे वहां पर भी। तो दिस इज समथिंग टू बी यू नो आप कंसिडर कर सकते हो, बट मेक श्योर अगेन बी कॉन्फिडेंट, बी पोलाइट इनफ, रूड नहीं होना, अच्छे से बात करोगे, वो भी ह्यूमन हमारे जैसे हैं, तो दैट इज वेरी इजिली डेल्ट। एक चीज और बताती हूँ, जब आप इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हो ना, स्पेशली इन मॉन्ट्रियल और टोरंटो, बहुत ज्यादा क्राउड होता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत आते हैं। तो जब आपको कुछ फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं तो मेक श्योर आप ऐसा कर सकते हो, जब लाइन लंबी दिख रही है ना, वो फॉर्म लेके लाइन में खड़े होके भरना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप साइड में भरोगे लाइन डबल होती जाएगी। मुझे अब कोरोना की सिचुएशन ज्यादा पता नहीं कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक इमिग्रेशन के टाइम होते ही हैं। सो बी इन योर लाइन और वहां पर ही फॉर्म फिल करो ताकि आप लाइन में भी आपका नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। दैट्स समथिंग यू गाइस कैन कीप इन योर माइंड। तो बैक टू अभिषेक क्वेश्चन। अभिषेक, आप पूछ रहे थे कौन सी चीजें हैं जो आपको ख्याल में रखनी है। सो आपको जाते ही फर्स्ट वीक में, अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप कॉलेज में तो जाने नहीं वाले हो, अगर डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, बट मोस्ट ऑफ देम आर ऑनलाइन। तो कुछ चीजें हैं जो आपको जाते करनी है। सिन, सोशल इंश्योरेंस नंबर, कई बार वो एयरपोर्ट पे दे देते हैं, नहीं देते, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद जाके लेना भी पड़ता है, ठीक है। सोशल इंश्योरेंस नंबर हो गया। फिर आपका बैंक अकाउंट, आपने स्कॉशिया बैंक में, मोस्ट ऑफ द हम लोगों का बैंक अकाउंट स्कॉशिया में होता है, वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, ठीक है, वो मैं बता दूंगी आपको। फिर आपको सिम लेना है, सिम हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका हेल्थ कार्ड। ये जो बेसिक मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किए हैं। अब अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन, अभिषेक यू कैन आस्क, इवन यशिका यू कैन आस्क। हेल्थ कार्ड तो दीदी वो कॉलेज नहीं देगा, कॉलेज हेल्थ कार्ड डिपेंड करता है, राइट। अब जैसे ये हर प्रोविंस के रूल्स डिफरेंट है। अब जैसे मैनिटोबा में क्या होता था, पहले स्टूडेंट की जो कवरेजेस होती थी वो कॉलेज कवर करता था, पर एक टाइम पे आके उन्होंने प्राइवेट कर दी थी, पर वो कॉलेज में आपकी एप्लीकेशन में लिखा होगा, इट विल बी रिटन ओवर देयर, है ना। तो जैसे अभी मैं रिसेंटली लड़की से बात करी थी, वो अल्बर्टा में है, तो शी हैड टू अप्लाई हर हेल्थ कार्ड। बाकी ये एवरी कॉलेज इज डिफरेंट, एवरी प्रोविंस इज डिफरेंट, वो क्राइटेरिया आपको एज अ कॉलेज या एज अ प्रोविंस पता करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल लुक इनटू इट इफ यू वांट। दूसरी बात थी सोशल इंश्योरेंस की, मैं आपको इनसाइट दे देती हूँ, बाकी आपने करना वही है। वहां पर 3-4 ऑप्शंस होते हैं, आप एक मेल से अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो या इन पर्सन। तो मैंने इन पर्सन किया था, क्यों? क्योंकि इन पर्सन इज रियली इजी फॉर मी। आप जाओगे, वॉक इन जाओगे, बड़े इजीली दे देते हैं अंटिल आपके उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपको ना वो शेयर कर देती हूँ एक बार 2-3 चीजें, है ना। लेट मी नो इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? मैंने अब जैसे वेबसाइट खोल ही रखी थी आप लोगों के लिए, जो जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप इससे नेविगेट कर सकते हो। आपके पास अभी टाइम है, जब तक आपकी फ्लाइट्स नहीं हुई हैं। गो बाय दिस वेबसाइट, ये अपनी कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपको सीधा नहीं पता लग रहा कैसे सर्च करना है, मैंने सिर्फ यहाँ पर अप्लाई फॉर सिन लिखा था तो पॉपअप होगी पहले में, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे, यहाँ पर लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई, वेयर टू फाइंड योर सिन, अप्लाई फॉर योर सिन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन भी है, अप्लाई बाय मेल भी है, अप्लाई इन पर्सन भी है। तो उसको सर्विस कनाडा बोलते हैं। आप जहाँ पर भी जा रहे हो वहां पर आप सर्च कर लेना सर्विस कनाडा, ठीक है। आपकी जो नियरेस्ट लोकेशन होगी, बस ये चेक कर लेना कोरोना की वजह से क्लोज ना हो, ओपन है, आप इन पर्सन चले जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो आपको इंस्टेंटली वहीं दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया सिन का। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों को? नहीं। और जिनको नहीं पता सिन क्या होता है, बेसिकली इट इज योर सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये आपको तब बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप काम करते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग दे विल आस्क फॉर, योर सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये लीगल, ये आपको यही चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको बैंक अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। तो स्कॉशिया बैंक का ऐसा है कि यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट टू, बट सब कुछ ऑन साइट है, सब कुछ ऑन साइट है। यहाँ पर जैसे मैंने अब आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ था। सो स्कॉशिया लिख लो, ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। कुछ आपकी ना आपको ईमेल्स वगैरह भी आएंगी, लुक इनटू दोज ऑप्शंस टू।
बाकी इनको कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बना सकते हो। प्रेफर ये करो कि अपॉइंटमेंट बना के जाओ, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा टाइम बाकियों से ज्यादा लगेगा। अगर आपकी अपॉइंटमेंट बनी हुई है, इट्स वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ये बड़ी फनी सी बात है, कल ही मैं फ्रेंड से बात करी थी, जब ये भी गई है रिसेंटली लड़की। अगर आप जब पहले जाते हो बैंक में, तो दे विल आस्क कि आपको लाइक आप कुछ चीजें होती हैं जो आपके पास राइट अवे नहीं होती। अगर आप सिम लेने जा रहे हो तो वो मांगेंगे क्रेडिट कार्ड, राइट? वो आपका क्रेडिट कार्ड रिव्यू करके आपको सिम देंगे, वो आपके पास है नहीं है, तो आप उनको क्या दोगे, राइट? सो आप फाइडो सिम ले सकते हो, फाइडो वाले इतना नहीं चेक करते, दे विल गिव इट टू यू। मतलब एक दो आपका वीजा और आपका पासपोर्ट देख के भी वो अलॉट कर देंगे। बाकी डिपेंड करता है। मेरे टाइम में ऐसा हुआ था, जो मेरे साथ गए थे ना, उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐड कर दिए थे, तो मुझे राइट अवे सिम मिल गया था। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ਇਹ ਸੀਗੇ ਯਸ਼ਿਕਾ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵਰਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸਟੈਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਇਟਸ ਵਰਥ ਗੋਇੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅ ਸ਼ਾਟ ਆਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਲਵਡ ਵਨਸ ਦੇਖਣ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼।